revision is very much important. The more you will revise, the more it will be helpful in doing the uh, next class, you know. And once again, I welcome Sanita ji, and please bear with the voice today because there were some technical issues earlier. And is the network fine over there, Sanita ji? Your video is paused because. Anshul ji, Ji ji. can you hear me? Yeah, 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 actually, yeah, yeah, yeah. This will be better. I was also thinking this, that you can share your screen and speak through your phone. yes, I'll do that. Yeah. I'll just Yes. try it. Uh, Just a minute. uh. Am I mute from my laptop? I Yes, can't yes, see. I yes. think. Yes, yes, you are mute. Yeah, I'll do it if in case you are not. yeah, please do that. Yes, I am. I'll Hmm. share my screen from from the laptop, and I'll speak from my phone. Okay. Okay, okay. That will be great. Yeah, yeah. I'll just, yeah, fine. So sorry for this technical problem, but Hmm. then No, that's okay, that's okay. You can start sharing. yes, yes, I can. Yes. So it is Uh, visible to all. yeah, okay. Namo Namaha. A very good morning to one and all present here. Uh, and yes, before starting today's session, we will again go through our song which we did the day before yesterday, and yes, then we'll start with our session. So yes, many of you, almost everyone told me to send the lyrics, but then yes, I have technical issues with my laptop, so I wasn't able to type it. I'll do it today itself and send it by 2 or 3 p.m. today. So yes, okay, we'll go with Ekam Dve today. So uh, Ekam Dve आगच्छन्तु सर्वे, हम्म, त्रीणि चत्वारि आनय वारि, पञ्च षट् कराभ्यां फट्, सप्त अष्ट ध्याननिष्ठ, नवदश संस्कृते प्रवेशः. Yes, so yes, this song is very easy, and we saw the meaning of this song day before yesterday itself. uh, and yes, yesterday the song which we done was Surasa Subodha. I'll just sing the same paragraph once and then we'll go ahead. Surasa Subodha Vishwamanojña ललितारुद्यारमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव क्लिष्टा न च कठिना, कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा अतीव सरला मधुर मंजुला नैव क्लिष्टा न च कठिना, नैव क्लिष्टा न च कठिना. So we saw the meaning for these two stanzas yesterday. We'll see the third stanza today and then start. व्यासविरचिता गणेशलिखिता महाभारते पुण्यकथा. ओके, सो व्यास विरचिता, विच इज जो जिसका जो व्यास विरचिता है, व्यास जी ने उसकी रचना की है, और लिखा किसने है? लिखा गणेश जी ने है. और महाभारते, महाभारत में पुण्य कथा है. ये कौन सी? महाभारत है ऐसा पुण्य कथा. कौन सी? जो व्यास जी ने जिसकी रचना की और गणेश जी ने जो लिखी है. ठीक है. और उसमें और क्या है? कौरव पांडव संगर मथिता
ठीक है। कौरव पांडव, कौरवों और पांडवों के बीच में जो युद्ध था उसकी वहां पे कथा है। और वो भी कैसी है, नैव क्लिष्टा न च कठिना, वो भी जो संस्कृत है वो भी बिल्कुल भी क्लिष्ट नहीं है, ठीक है, और ना ही कठिन, ठीक है। तो दिस वाज द पैराग्राफ वी वर गोइंग टू सी टुडे। So yes, we'll start with our today's session. So yes, yesterday what we saw, the topics which we saw were the plural forms for all the पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एंड नपुंसकलिंग। कल हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के बहुवचन रूपों को देखा है। तो आज हम और थोड़ा सा आगे जाएंगे और सप्तमी विभक्ति तो देखेंगे ही, उससे पहले एक और प्रश्नवाचक शब्द देखेंगे जो है कदा, ठीक है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कदा क्या का मतलब मराठी में है केव्हा, in English it is when, and in Gujarati it is kyare, and in Hindi it is kab. Okay, so yes, we'll just go through the sentences and then see. Okay, so the first one is सूर्योदयः प्रातः काले भवति, ठीक है। सूर्योदय प्रातः काल में होता है, ठीक है। उपवास व्रतम गुरुवासरे अस्ति, उपवास व्रत जो है वो गुरुवार को है, ठीक है। परीक्षा अप्रैल मासे अस्ति, परीक्षा अप्रैल मास में है। रक्षाबंधन उत्सवः श्रावण मासे अस्ति, रक्षाबंधन उत्सव श्रावण मास में है, ठीक है। फिर अहम षड्वादने उत्तिष्ठामि, मैं 6 बजे उठती हूँ या उठता हूँ, ठीक है। पूजा सायंकाले गृह कार्यम करोति, पूजा शाम को घर का कार्य, गृह कार्यम एक होमवर्क भी हम कह सकते हैं, गृह कार्यम हैज टू मीनिंग्स, गृह कार्यम वी कैन से इट एज होमवर्क, होमवर्क कह सकते हैं, या तो फिर घर का जो कार्य है उसे भी हम गृह कार्य कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हेन वी वांट टू आस्क क्वेश्चंस, जब हमें इन वाक्यों के लिए अगर प्रश्न पूछना है तब हम किसका उपयोग करेंगे, तब हम कदा इस प्रश्न का उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने हर एक वाक्य में देखा है कोई तो चीज कब है, ऐसे ये बताया गया है, जैसे सूर्योदय प्रातः काले भवति, सूर्योदय कब होता है, तो उसी के लिए हम संस्कृत में क्या कहेंगे, सूर्योदय कदा भवति, ठीक है। सूर्योदयः कदा भवति, तो उसका उत्तर हम क्या देंगे, सूर्योदयः प्रातः काले भवति, ठीक है। वैसे ही अगर मैंने पूछा कि उपवास व्रतम कदा अस्ति, तो आप कैसे क्या कहेंगे, उपवास व्रतम गुरुवासरे अस्ति, ठीक है। वैसे ही अगर मैं पूछूं कि परीक्षा कदा अस्ति, तो उसका उत्तर आप कैसे देंगे, अर्पण जी क्या आप बताएंगे। परीक्षा अप्रैल मास से अस्ति। वेरी गुड, यस, उत्तमम, धन्यवादः। ओके, फिर अगर मुझे प्रश्न पूछना है कि रक्षाबंधन उत्सव श्रावण मासे अस्ति, इसके लिए अगर मुझे, इस वाक्य के लिए अगर मुझे प्रश्न पूछना है तो मैं कैसे पूछूंगी, अर्पण जी। ओके, अर्पण जी, आर यू देयर? यस मैम। जी मैम, कैन यू कम अगेन मैम प्लीज? या श्योर। रक्षाबंधन उत्सव श्रावण मास से अस्ति, अगर इसके लिए मुझे प्रश्न पूछना है तो मैं कैसे पूछूंगी, रक्षाबंधन कदा अस्ति, रक्षाबंधन उत्सव कदा अस्ति, यस यू आर उत्सव राइट कदा अस्ति। जी, यस, धन्यवाद। ठीक है, तो हम कैसे पूछेंगे, रक्षाबंधन उत्सव कदा अस्ति, ठीक है, ऐसे पूछेंगे। ओके, अहम षड्वादने उत्तिष्ठामि, अगर इस वाक्य के लिए मुझे प्रश्न बनाना है तो फिर मैं अहम कदा उत्तिष्ठामि नहीं, मैं पूछूंगी भवती या भवान कदा उत्तिष्ठति, ठीक है। हमने देखा था भवती का या फिर भवान कह, ये हमने पहले दिन ही देखा था, ठीक है। तो भवती किंवा भवान कदा उत्तिष्ठति, इसके लिए मेरा उत्तर क्या होगा, अहम षड्वादने उत्तिष्ठामि, ठीक है।
फिर है पूजा सायंकाले गृह कार्यम करोति। इसके लिए अगर मुझे प्रश्न पूछना है तो मैं कैसे पूछूंगी? आनंद जी क्या बताएंगे? पूजा कदा गृहकार्यं करोति? जी उत्तमम आम। पूजा कदा गृह कार्यम करोति, ठीक है। तो पूजा सायंकाले गृह कार्यम करोति, ठीक है। तो अब जब हम सप्तमी विभक्ति की बात करें तो यहाँ पे हर एक वाक्य में हमें सप्तमी विभक्ति दिखती है, ठीक है। जैसे प्रातः काले, गुरुवासरे, अप्रैल मासे, या फिर श्रावण मासे, षडवादने, या हो सायंकाल में। ये जो सारे शब्द है वो सारे सप्तमी विभक्ति में है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, प्रश्न हमने देखे, अब हम देखेंगे सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति क्या है? अधिकरण में पर, ठीक है। हिंदी में इसे हम अधिकरण कहते हैं, और उसमें क्या रहता है? में, या पर, ठीक है। और ठीक है, तो प्रातः काले, कौन सा शब्द है वो? प्रातः कालः, उसका क्या हुआ है? सप्तमी, प्रातः काले, ठीक है। फिर गुरुवासरः, उसका क्या हो गया? गुरुवासरे, गुरुवार को, ठीक है। अप्रैल मासः, अप्रैल मास में, ठीक है। श्रावण मासः, श्रावण मासे, ठीक है। या फिर है सायंकालः, सायंकाले, ठीक है। वैसे ही हमने कल कुछ एग्जांपल्स देखे थे, जैसे हस्तः, तो हस्ते, चषकः हस्ते अस्ति, फिर चमसः चषके अस्ति। वैसे ही हमने और भी कुछ एग्जांपल्स देखे थे। तो जिस पर कोई चीज है उसकी सप्तमी विभक्ति होती है, या फिर जिसमें कोई चीज है उसकी सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे हाथ पर अगर ग्लास है, चषक है, तो चषकः हस्ते अस्ति, ठीक है। वैसे ही अगर चषक में पानी है तो चषके जलम अस्ति, ठीक है। चषके जलम अस्ति। वैसे ही हस्तः हस्ते, ठीक है। चमसः चमसे, चम्मच में, हाँ। चमसे भोजनम अस्ति, अगर चम्मच में कुछ भोजन है, ठीक है, खाने का कोई पदार्थ है, तो हम क्या कहेंगे? चमसे भोजनम अस्ति, ठीक है। फिर चषकः चषके, वैसे ही अंशुल जी। जी जी, can you please share your screen? I'll just stop sharing. okay, is there Yeah, a problem? yeah. Okay, just a minute. I'll just stop sharing my screen. Okay. Yeah, I don't know what's the problem. Yeah, so by the time Anshul ji shares screen, I'll go through the questions. Okay, so yes, Shikha ji, I'll write Hindi for that. I'll write it. Okay, and yes, there are many similarities in Sanskrit and Bengali. That's true. So yeah, because Bengali is directly originated from Sanskrit. Okay. Are you able to see this? Yes, I am able to see it. Okay. Yeah. I shall scroll down. Yeah. Here, right? Yeah. Here. Yes. So hastah, haste. The same way chamasah, chamase, which we were seeing. After that it's chashakah, chashake. The same way sudhakhandah, that is chalk, and sudhakhande. Okay. All these words were पुल्लिंग, ये जो सारे शब्द थे वो पुल्लिंग शब्द थे। अगर अब हम आगे जाए और देखें, वो सारे हैं स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। कुंचिका, जैसे अब आप सबको पता है, कुंचिका का मतलब है चाबी, चाबी।
तो कुंचिका कुंचिकायाम, ठीक है। फिर मापिका मापिकायाम, ठीक है। स्थालिका स्थालिकायाम, ओके। फिर है वाटिका वाटिकायाम। और कूपी जो है वो भी स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन उसका जो अंत है वो ईकार से होता है, इसीलिए हम इसे इसकी सप्तमी विभक्ति जब हम करते हैं तब हम उसे कूपियाम कहते हैं, ठीक है। अंशुल जी, कैन यू प्लीज स्क्रॉल डाउन अ लिटिल बिट? जी। यस यस यस, फाइन। फिर है लेखनी, वो भी ईकारांत है, ठीक है, दीर्घ ईकारांत है। उसका भी सप्तमी होता है लेखन्याम। और अंकनी का होता है अंकन्याम, ठीक है। बाकी नीचे जो सारे चार शब्द है वो सारे शब्द नपुंसक लिंग है, ठीक है। तो पुस्तकम का क्या होता है पुस्तके, ठीक है। वैसे ही पुष्पम का पुष्पे। उपनेत्रम के लिए सप्तमी विभक्ति होगी उपनेत्रे। और षड़वादनम के लिए षड़वादने, ठीक है, जो हमने इससे पहले वाक्य देखे। ओके, ठीक है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे। अंशुल जी, कैन यू प्लीज स्क्रॉल डाउन? Yeah, actually, okay, fine. Anshul ji, can you open that Word file which I sent you? Yes, yes. Wait a minute. Yeah. Yes. Okay, so yes, I was going through the questions. So yes, JLM ji, the Sanskrit has only Bhavan Bhavati for both tum and aap, or is there any difference? Yes, there is a difference which we'll be seeing tomorrow. Yes, we'll see that difference tomorrow. And yes, सुनित जी, चषक के जलम अस्ति और जलम चषक के अस्ति, ये दोनों सेंटेंस का मतलब सेम। yes, it will be the same. It is a beauty of Sanskrit that जब हम अगर सेंटेंस का कोई स्ट्रक्चर बदलते हैं तो भी उसका मीनिंग नहीं बदलता है as it changes in the other languages. Okay, so yes, the yeah, सीक्वेंस कोई भी हो तो चलता है। yes, जीनल जी, you are right. I think there's a problem in the Word file itself, I suppose. Yeah, actually it's because while sharing it becomes a problem. Okay. Fine. Yeah, just a minute. Okay, fine. I'll just try one thing. Okay, just give me a minute. I'm very sorry for these problems today, but I can't do anything for it. I don't know That's what's okay. wrong. That's okay again. Yeah, I'll just try one thing. I have it. Yeah. Just a minute. Yes. See if this is okay now. Yes, right. Uh, Yes, this is what I wanted. Hmm. Yeah, so thanks a lot, Anshul ji. And That's yeah, so यहाँ पे कुछ शब्द है, मतलब शब्द है और अंत में अस्थि दिया गया है। तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सप्तमी विभक्ति नाउ। कैसे प्रैक्टिस करनी है, आई विल जस्ट लेट यू नो वन और टू सेंटेंसेस और फिर आई विल आस्क इट एज वी डू एवरी डे। ओके, अयोध्या उत्तर प्रदेश अस्ति, ठीक है। दिस इज व्हाट अ सेंटेंस विल बी। जब हमें सप्तमी विभक्ति उसकी करनी है तो व्हाट विल वी डू इज अयोध्या उत्तर प्रदेश अस्ति। तो अगर मैं हिंदी में कहूँ तो क्या होगा, अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। सो सप्तमी किस वर्ड की होगी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। सो विल से द संस्कृत सेंटेंस। या अयोध्या उत्तर प्रदेशे अस्ति, ओके। द सेम वे गंगोत्री हिमालये अस्ति, okay. So if I want to say it for अर्चकः देवालयः अस्ति, what will I say? Yes, Anurag ji, can you please try? हाँ, सो अर्चकः देवालये अस्ति।
Yes, yes, that's true. Archakah devalaya asti. That's absolutely true. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Okay. So, phalam vrukshah asti. Okay. So for that, Bharat ji, will you please try? Hirak Joshi ji, can you please mute your mic? Yes, thank you. Yes, Bharat ji, will you try? Phalam vrukshah asti. फलं वृक्षः अस्ति. Huh. What will we? How will we use vrukshah in Saptami Vibhakti? वृक्षे Vrikshe. Yes, that's right. So, what will be the sentence? Phalam. वृक्षे अस्ति. Yes, absolutely true. Phalam vrukshe asti. Thank you. Thank you, Bharat ji. Thank you, ma'am. Yes. Yes. So the next is lekhani apanah asti. Okay. So what will be the sentence for it? Yes. Deepika ji, will you please try? Yes, Uh, ma'am. Yes. लेखनी आपने Yes. Yes, absolutely right. Lekhani apane asti. Ma'am, Yes, but thank what you. what is the meaning of apan? Yes, apanah is a market. Okay, ma'am. Thank you. Market. Yeah. Yeah. Thank you. Okay. Anshul ji, can you please scroll? जी. Yes. Yes. Thank you. Thank you. Yeah. So pustakam syutah asti. So how will we say this sentence using Saptami Vibhakti? Dushyant ji. Yes. Yes. पुस्तकं स्यूते अस्ति. Yes. Very good. Pustakam syute asti. The meaning of syutah is bag. Okay. Yes. Absolutely right. Dushyant ji. Thank you. Okay, so next we still have some sentences. So now, yes, okay. Thank you, Anshul ji. Yes, so jalam patram asti. Okay, so I'll give you an example. Jalam patre asti. ठीक है? The same way murtihi mandiram asti. Gauri ji, can you try? Yes, ma'am. मूर्तिः मन्दिरे अस्ति. Yes, absolutely right. Murti mandire asti. Yes, thank you. Dhanyavadaha. The same way, katha pustakam asti. Okay. Dharmanshu ji, will you please try? Sure, ma'am. Katha pustake asti. Yes, katha pustake asti. Okay. The same way, gruham nagaram asti. So, yes, Bhaskar ji, can you please try? गृहं नगरे अस्ति. Yes, that's absolutely true. Gruham nagare asti. Thank you. Dhanyavadaha. Okay. Then marjarah. Marjarah means a cat. Okay. We saw one more word, that is bidalah. Okay. So marjarah means also means cat. So marjarah gruham asti. Yes. Akshit ji, can you please try? मार्जार Yes. मार्जार गृहे अस्ति. Okay. Fine. Yes. Thank you, Akshit ji. धन्यवाद. Marjarah gruhe asti. That's true. And then कार्यक्रमः दूरदर्शनम asti. Yes. Hardik ji, can you please try? I think no. Okay. Harsh Agarwal. Yes, Shikha ma'am, please try. कार्यक्रमः दूरदर्शने अस्ति. Yes, that's true. कार्यक्रमः दूरदर्शने अस्ति. जी, धन्यवादः. That's true. Thank you, ma'am. Okay. Yeah.
Okay, so now the first one is Varta Patrika Asti. Okay, so who will try this? This is a striling word. Okay, I think Jay ji, will you please मैम try it? मैम Yes, yes. मैम Yes, Ravi ji. वार्ता पत्रिकायाम अस्ति मे बी. Yeah, that's true. Varta Patrikayam Asti. Thank you very much, Ravi ji. Yeah. So पत्रिकायाम, why did we use पत्रिकायाम? हमने पत्रिकायाम ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पत्रिका, वाटिका, पेटिका, मथुरा इत्यादि जो ये शब्द है वो सारे शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, और स्त्रीलिंग में जब हमें सप्तमी विभक्ति करनी है तो हम क्या कहते हैं? पत्रिकायाम, वाटिकायाम इत्यादि. ठीक है, तो आगे जाके we will I think we will ask Indu ji, will you please try Pushpam Vatika Asti? Yes, Indu ji, are you there? Madam, Yes, Jay Kumar ji, please try. Pushpam Vatikayam Asti. Yeah, Pushpam Vatikayam Asti. जी, धन्यवादः. Thank you. So yes, Pushpam Vatikayam Asti. पुष्प जो है वो वाटिका में है. ठीक है, फिर है वस्त्रम पेटिका अस्ति. Yes, so Jay Mahajan ji, Jay Maniyar ji, will you please try? मैम which one? Vastram Petika Asti. वस्त्रम पेटिकायाम अस्ति. जी, that's absolutely true. धन्यवादः. Vastram Petikayam Asti. Petika is a bag. Okay. Okay, then Mandiram Mathura Asti. Yes, Keval ji, will you please try? Keval ji? Yeah. मैं प्रयत्न करूं मैडम. जी कीजिए हीरक जी. मंदिरम मथुरायाम अस्ति. जी, उत्तमम. मंदिरम मथुरायाम अस्ति. That's absolutely true. धन्यवादः. Okay. So आभूषणम कपाटिका अस्ति. Okay. So Lekha ji, will you try this? Yes, ma'am. Yes. आभूषणम कपाटिका अस्ति. कपाटिकायाम अस्ति. Yes, that's absolutely right. Abhushanam kapatikayam asti. Kapatikayam means cupboard. Okay. Yes. Okay. Now the next one. Thank you, Lekha ji. Yes. So Shishyah Pathashala asti. Yes. Karthik ji, will you please try? Okay, fine. Jailam ji, will you please try? पाठशालायाम् अस्ति. Yes, that's true. Shishyah Pathashalayam asti. ठीक है? Okay, thank you ji. Yes. Anshul ji, can you please scroll down a bit? Yes, ji, thank you ji. Yes. So now all these words in red are स्त्रीलिंग words and with ईकारंत. ओके, जिसका अंत ई से होता है. तो इसका जैसे हमने कूपी का देखा कूप्याम, वैसे ही नदी का होगा नद्याम. ओके, so yes, this is a bit difficult for now, but then yes, we all can do it as we do every day. Yes. Okay, so the first one I'll give you an example. मीनः नदी अस्ति का होगा मीनः नद्याम अस्ति. ओके, नद्याम अस्ति. ओके. Yes. औषधम कूपी अस्ति. Lalita ji, can you try? Yes. For औषधम. Yes. औषधम कुप्याम अस्ति. Yes, absolutely true. Okay.
औषधम कूप्याम अस्ति, ठीक है। वन थिंग टू नोट हियर इज, हम जब कूप्याम या लेखन्याम बोलते हैं तो वहाँ पे जो अंत में म आता है वो हम आधा ही बोलते हैं, विल नॉट स्पीक इट एज अ होल म, कूप्याम म नहीं बोलेंगे, विल जस्ट से कूप्याम, ओके। यस यस यस, थैंक यू जी, या ओके। मशी लेखनी अस्ति, ठीक है। मशी इज इंक, ओके। यस, मितेश मोदी जी, विल यू प्लीज ट्राई? Yes, ma'am. Yes. मसी लेखनीयाम अस्ति. या, सो मशी लेखन्याम अस्ति, ओके। मशी लेखन्याम अस्ति, फाइन, ओके। सो फिर है सूची घटी अस्ति, ठीक है। सो निर्जा जी, विल यू ट्राई दिस? यस मैम। या सूची घट्याम अस्ति। हाँ, सो जैसे मैंने पहले कहा, हम घट्याम नहीं कहेंगे, हम सिर्फ घट्याम कहेंगे, ठीक है। घट्याम, ओके। सूची घट्याम अस्ति। या सो यहाँ पे सूची का मतलब क्या होगा? घड़ी में जो ये रहते हैं, से एरो, या एरो, एरोज, या मे बी Hands. Hands या and जी numbers. जी जी, यस, थैंक यू जी, ओके। सो द नेक्स्ट वन इज गंगा काशी अस्ति, यस। सो पूजन जी, विल यू प्लीज ट्राई? yes, Poojan ji, are you there? Okay, so Ma'am, can I try? yes, Pratik ji, गंगा please try. काश्याम अस्ति. Yeah, that's true. गंगा काश्याम अस्ति, ठीक है। yes, गंगा काशी में है, ठीक है। yes, okay. फिर है यमुना देहली अस्ति, okay. प्राची जी, will you try? yes, yes. यमुना देहल्याम अस्ति। हाँ, yes, उत्तमम, that's true. यमुना देहल्याम अस्ति, okay. Yes, so this is how we use Saptami Vibhakti. The things to remember in Saptami Vibhakti are, जब भी क्वेश्चन होता है कहाँ, कदा, ठीक है, कब, तो सुबह में या फिर प्रातः काले, गुरुवासरे या फिर रविवासरे इत्यादि, जिसका हम जब हम प्रयोग करते हैं तब हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और एक चीज जो हमें याद रखनी है यहाँ, वो है कि जैसे हिंदी में हम कहीं पे तो किसी में, गुरुवार को इत्यादि का उपयोग करते हैं, तो तब भी हम सप्तमी विभक्ति का उपयोग करते हैं, ठीक है। सो ओके, थोड़ा सा आगे जाएंगे और हम कल देख रहे थे कति, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। तो जब हम कति के बारे में बात करते हैं तब हमने कल ये प्रश्न देखे थे, कति, ठीक है। तो एक बार सिर्फ इसका रिवीजन करेंगे और थोड़ा सा आगे जाएंगे। सप्तवासराः सन्ति, इसके लिए जब हमें प्रश्न पूछना है तो हम क्या पूछेंगे? कति वासराः सन्ति, ठीक है, कितने, ठीक है, कितने दिन होते हैं, ठीक है, सन्ति। और फिर स्पर्धायाम दश बालकाः सन्ति, स्पर्धा में 10 बालक है, प्रश्न पूछना है तो क्या पूछेंगे? स्पर्धायाम कति बालकाः सन्ति, ठीक है। वैसे ही अगर मुझे इस वाक्य के लिए प्रश्न पूछना है, 12 मासाः सन्ति, ठीक है। तो रुचिरा जी, कैन यू ट्राई? हम इस वाक्य के लिए क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? Okay, fine. Hello, ma'am. Ma'am, yes. Yes, Ruchira ji. Ma'am, I can't. Yes, ma'am. द्वादशः कति मासाः सन्ति? Okay, no, the question will be Yeah, ma'am. yeah. Yeah, question. कति मासाः सन्ति? Hello? Yes, Ruchira ji. Yes, ma'am, Ruchira I ji. can't hear you properly. Yeah. Hello? Can you hear me now? Am I audible?
Yes, Yeah. ma'am, you are audible. Yeah. Kati masaha santi will be the question. Okay. Yeah. Okay. Yes, ma'am. Kati Uh, masah santi. yes. Thank you, Ji. Thank you. Dhanyawad. Okay. Now, Ruchira ji, you may mute yourself. That's fine. Yes, ma'am. Yeah. Okay. So now the next one is mama mukhe अष्टाविंशतिः दंताः सन्ति. ठीक है. तो जब मुझे इसके लिए क्वेश्चन पूछना है तो मम जो है उसके लिए हम क्या कहेंगे, भवत्याः या तो फिर भवतः. If it's a girl, we will use the question bhavatyaha, and if it's a boy, we will use bhavatah. ठीक है. तो now if I ask this question to yes, Anshul ji, yes, जी. भवतः मुखे कति दंताः सन्ति? मम मुखे अष्टविंशतिदन्ताः सन्ति. जी, धन्यवादः. ओके, मम मुखे अष्टविंशतिः दंताः सन्ति. ओके, धन्यवादः. ओके, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो विल सी हस्ते पंच अंगुल्यः सन्ति. ठीक है. what will be the question for this? Yes, Anand sir, can you please try? Yes, ma'am. Which one? हस्ते पंच अंगुल्यः सन्ति. हस्ते कति अंगुल्यः सन्ति. Yes, absolutely right. हस्ते कति अंगुल्यः सन्ति. Thank you जी. Thank you. Yes, okay. Then सप्तविंशतिः नक्षत्राणि सन्ति. Okay. So कति नक्षत्राणि सन्ति? Okay, this will be the question. Okay. Yes, so we are done with kati. As I told you yesterday, what we need to remember here is कति जो है वो संख्यावाचक प्रश्न है. जहाँ पे भी हम कति, जहाँ पे भी संख्या होती है वहां पे भी हम कौन सा प्रश्न पूछते हैं, हम कति पूछते हैं. ठीक है. ओके, विल गो. या तो हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे. अंशुल जी, कैन यू प्लीज स्क्रॉल डाउन. Shall I do more? Yes. Yes, actually, what I think is you can just stop sharing screen for a while. I just need to act a bit and then we'll go ahead. Okay. Yeah. Just a minute. Yes. Am I visible? Yes, yes, you are. Yes. Okay. So हमने कौन सी कितने वासर कितने दिन होते हैं वो हमने देखे थे. दैट इज सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः और रविवासरः. ठीक है. तो जब हमें कहना है कि आज सोमवार है तो हम कैसे कहेंगे. तो फॉर टुडे वी यूज अद्य. ओके, अद्य. ओके, we'll learn this through acting. ओके, अद्य. ठीक है. अद्य सोमवासरः. ठीक है. अद्य सोमवासरः. अभी हम अस्ति मतलब है, इसके लिए हम कोई भी वर्ड क्रियापद यूज नहीं करेंगे. ठीक है. अस्ति नहीं कहेंगे. विल जस्ट यूज अद्य सोमवासरः. ठीक है. अद्य सोमवासरः. श्वः मंगलवासरः. श्वः मंगलवासरः. that means अद्य श्वः. अद्य श्वः. ठीक है. अद्य सोमवासरः, श्वः मंगलवासरः. परश्वः, परश्वः बुधवासरः. परश्वः बुधवासरः. ओके. प्रपरश्वः, प्रपरश्वः गुरुवासरः. प्रपरश्वः गुरुवासरः. ठीक है. अद्य सोमवासरः, श्वः मंगलवासरः, परश्वः बुधवासरः और प्रपरश्वः गुरुवासरः. ठीक है. तो आज का मतलब क्या हुआ, अद्य. कल दैट इज टुमारो क्या हुआ, श्वः. श्वः. फिर परसों दैट इज परश्वः. और उसके बाद का जो दिन है उसके लिए हम क्या कहेंगे, प्रपरश्वः. ठीक है. प्रपरश्वः. अद्य. ओके, कीप योर माइक्स ऑन म्यूट एंड जस्ट ट्राई टू प्रोनाउंस आफ्टर मी. ओके. अद्य, अद्य, श्वः, श्वः,
परश्वः, ठीक है, परश्वः, फिर है प्रपरश्वः, परसों के भी बाद का दिन, प्रपरश्वः, ठीक है, ओके। वैसे ही अद्य, अद्य सोमवासरः, यह, यह, आधा ह और य, ओके। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्टी है, बट देन यस विल, इट्स अ टंग ट्विस्टर फॉर अस। सो यह, यह रविवासरः आसीत्, यह रविवासरः, ठीक है। अद्य सोमवासरः, यह रविवासरः, ठीक है। अद्य सोमवासरः, यह रविवासरः, परय्यः, परय्यः परसों, परसों वाला, कल, कल रविवार, फिर परसों क्या था, शनिवासरः, ठीक है। परश्वः शनिवासरः, और प्रपरश्वः, प्रपरश्वः क्या था, शुक्रवासरः, ठीक है, शुक्रवासर वासरः, ठीक है। रिपीट आफ्टर मी, कीप योर माइक्स ऑन म्यूट एंड रिपीट आफ्टर मी। अद्य, एंड एक्ट आल्सो, अद्य, यः, परय्यः, प्रपरय्यः, ठीक है। अद्य, अद्य सोमवासरः, यः रविवासरः, परय्यः शनिवासरः, प्रपरय्यः शुक्रवासरः, ठीक है। अद्य, यः, परय्यः, प्रपरय्यः, ठीक है। अद्य, यः, परय्यः, प्रपरय्यः, परसों के भी पहले वाला दिन, ठीक है। फिर अद्य, श्वः, परश्वः, प्रपरश्वः, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। सो आई विल आस्क क्वेश्चंस नाउ। सो अद्य, अद्य अद्य मंगलवासरः अस्ति, यः, अरे श्वः कः वासरः, अनुराग जी? हाँ, नमस्ते मैम। तो जी नमस्ते। श्वः बुधवासरः। आम्, उत्तमम्। अद्य मंगलवासरः, श्वः बुधवासरः, आम्। अस्तु, परश्वः कः वासरः? परश्वः गुरुवासरः। आम्, उत्तमं, परश्वः गुरुवासरः। जी धन्यवाद, थैंक यू। ओके, so okay, one more question, that is adya, adya शुक्रवासरः, यः कः वासरः? यः, यः गुरुवासरः। आम, सत्यम, यः गुरुवासरः। जी, thank you ma'am. Okay, so I think it is clear with everyone. Okay, okay, yes, Keval ji, can you tell me, adya, अद्य शनिवासरः, श्वः कः वासरः? श्वः रविवासरः अस्ति। Okay, fine. Okay, we'll not use the word asti for now at least. Okay, I'll tell you the reason after this. Okay, so adya shanivasarah, shvah ravivasarah. Okay, so Shikha ji, parashvah kah vasarah? सोमवार, सोमवारः। परश्वः, परश्वः शुक्रवारः। हाँ, परश्वः, परश्वः इस परसों, ओके, जो आने वाला है। जी हाँ, सोमवारः। हाँ, ओके ओके जी, थैंक यू जी। Okay, so I think it is clear with everyone. So adya, today, shvah, tomorrow, parashvah, day after tomorrow, and praparashvah, the day after tomorrow. Okay, and adya, today, yah, yesterday, parayah, day before yesterday, and praparayah, the day before that day. Okay, so yes, very good. And okay, fine. The new topic which we need to start will take a lot of time, and it's a bit new one. So for today, I would like to teach you all
song which will be useful for your kids, I think. Before starting that, Anshul ji, are there any questions? I'll just see, but I think we had covered most of them. Okay. Yes, there is a good question. क्या शहरों के नाम स्त्रीलिंग हैं? क्या क्या? And क्या शहरों के नाम, जैसे मथुरा आपने लिया था ना, हाँ, yes. उदाहरण के लिए, तो प्रश्न है प्रतीक जी का कि क्या शहरों के नाम स्त्रीलिंग हैं? एक्चुअली ऐसा नहीं है, डिपेंड्स ऑन द सिटी और उसका नाम जो संस्कृत में है वो, ठीक है. सो जैसे एग्जांपल अगर कहूँ तो गुजरात में देयर इज अ प्लेस नेम इज राजकोट, तो राजकोट के लिए नाम है राजदुर्गम. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस. सो ऐसा कुछ नहीं है. ओके. इकारांत आकारांत स्त्रीलिंग होता है, इसलिए मथुरा, ये रवि रंजनी का कमेंट है. बिप्लब जी का प्रश्न है कि अस्थि मीन्स है एंड संति मीन्स है या होता है या दोनों. कल डिस्कस हुआ था. हाँ, यस, दैट ये कल हमने डिस्कस किया था. है इज अस्थि और उसका ही बहुवचन जो होता है वो संति है. और यस, ओके. एनी अदर क्वेश्चन अंकुल जी? AMPM बज रहा है जो परसों डिस्कस किया था. ओके, यस. उसमें समय को लेकर के AMPM का डिफरेंस. ओके. सो जब AMPM एज सच हम संस्कृत में ऐसे उपयोग नहीं करते हैं, सायंकाले का उपयोग कर देते हैं उस टाइम पे. जब हमने जो परसों देखा वो सिर्फ 12 वाला क्लॉक था, नॉट वी डिडंट यूज द 24 आवर वाला, ठीक है. सो इफ यू यूज 24 आवर वाला, सो इट विल बी क्लियर. अगर हम 24 घंटे वाला जब यूज करेंगे या फिर 1 बजता है तो 13 जब हम कहते हैं त्रयोदश वादनम, तब इट विल बी क्लियर कि हम AMPM के बारे में बात कर रहे हैं. नहीं तो फिर प्रातः सप्तवादने, सायं सप्तवादने ऐसा हम उपयोग करते हैं. I didn't take this topic yesterday because yesterday we were supposed to do that बहुवचनम वाला thing, इसलिए हमने कल नहीं किया था. And yes, I have planned this tomorrow कि आगे हम त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश वादनम ले या फिर सपाद त्रयोदश वादनम, ये हम कल एक बार रिवाइज कर लेंगे tomorrow. जी. ठीक है. So we can go with the song now. Yeah. Okay. So this song is translated from a English story, The Fox and Grapes. I think you all know it. So this song is very good for children and children love it. So I'll just try and sing. मैं बहुत अच्छे से एक्टिंग नहीं कर सकती क्योंकि आज मैं फोन से लॉग इन कर रही हूँ इसलिए. But then I'll try it. Yes, I'll send you the lyrics of this from this book itself, and you will get it. And yes, the title of the song is Amlam Draksha Phalam. ठीक है. Amlam is खट्टी, Draksha Phalam grapes, अंगूर. So एकः श्रुगालः. ठीक है. तो मैं सिर्फ लिरिक्स बताती हूँ, पहले फर्स्ट जो भी स्टैंजा है उसके, एंड देन विल गो. एकः श्रुगालः वनम गच्छति. वनम गच्छति. हाँ, बिफोर स्टार्टिंग दिस सॉन्ग और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम कैसे संस्कृत और ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं. वो चीज ऐसी है कि संस्कृत हमें नहीं आती, दैट्स ट्रू, पर अंशुल जी कैन यू प्लीज म्यूट. हाँ, यस, थैंक यू. या सो जब हम संस्कृत के बारे में बात करते हैं तो हमें संस्कृत भाषा नहीं आती, पर संस्कृत के में से आई हुई भाषाएं हमें आती है, जैसे कि हिंदी आती है, मराठी आती है, गुजराती आती है. ठीक है. तो हम ना थोड़ा थोड़ा सुन के, मतलब जिसे हम सिलेक्टिव लिसनिंग कहते हैं, वो करके या फिर सिलेक्टिव रीडिंग से भी हम ये चीजें समझ सकते हैं. सो वील ट्राई इट फ्रॉम टुमारो. From tomorrow, I'll give you some instructions or I'll ask you questions in Sanskrit. Don't worry, नहीं समझ में आया तो I'll tell it to you in Hindi also. But then, yes, we need to start talking in Sanskrit now. Okay. Okay. So we'll start the song.
एकः शृगालः, शृगालः फॉक्स, एकः शृगालः वनं गच्छति, सः सः वनं गच्छति. Why he goes to the forest? Pipasa, bubhuksha, bubhuksha, he was hungry. Pipasa, he was thirsty and hungry. Pipasa, bubhuksha, पिपासया बुभुक्षया. पिपासा मतलब थर्स्ट, और मतलब वो बहुत थर्स्टी था और बहुत बुभुक्षित था, मतलब बहुत भूखा था, इसलिए वो वन में गया. वनम गच्छति, सह वनम गच्छति. फिर अत्र, अत्र पश्यति, यहाँ देखता है. किमपि न लभते, कुछ भी नहीं मिलता. तत्र पश्यति, तत्र पश्यति, पश्यति टू सी. अत्र पश्यति किमपि न लभते, तत्र पश्यति किमपि न लभते. स्वेदः जायते, स्वेदः इज पसीना, जायते. तृषा, तृषा जायते, तृषा इज थर्स्ट, थर्स्ट बहुत प्यास लगी है. स्वेदः जायते, तृषा जायते, तस्य तृषा जायते. किम च करोति, क्या करता है वो, किम च करोति. ठीक है, किम च करोति, सह किम च करोति. ठीक है, एकवारम, एकवारम उत्पतति, उत्पतति इज टू जंप. ओके, एकवारम उत्पतति, द्विवारम उत्पतति, दो बार जंप करता है. त्रिवारम उत्पतति, ठीक है, तीन बार जंप करता है. और पुनः पुनः उत्पतति, बार बार वो जंप करता है. ठीक है, एक वारम उत्पतति, द्विवारम उत्पतति, त्रिवारम उत्पतति, पुनः पुनः उत्पतति, बार बार जंप करता है. फिर से स्वेदः जायते, तृषा जायते, पसीना आता है, और तृषा जायते, बहुत प्यास लगी है. ठीक है, फिर कैसे भी करके ही रीच थ्रू द ग्रेप्स. ठीक है, और उसने ग्रेप्स खाई. ठीक है, और व्हाट डिड ही से, किम च कथयति सह, व्हाट डिड ही से, आम्लम द्राक्षा फलम. ठीक है, जो अंगूर के जो फल है वो बहुत आम्लम है, वो बहुत खट्टे हैं. ठीक है, आम्लम द्राक्षा फलम. ठीक है, और फिर क्या कहता है, इत्येवम कथयति, ऐसा कहता है आम्लम द्राक्षा फलम, और फिर क्या करता है, वो वहां से भाग जाता है. ठीक है, he runs away from there. Okay, so I was not able to act as I wanted to do for this song. Especially I really love this song for children, but then yes, I'll do it once I log in from my laptop again, maybe tomorrow. So yes, I wanted to start with this song. Okay, so almost we are done with all the things. The new topic which I wish to start, but it will take too much time. Okay, so we are not starting with it. Yes, Anshul ji, are there any other questions or any queries, or if anyone wants to ask something about anything? I'll just check. I think there is just one comment. No, Yeah. there are Okay. no questions now. Yeah. But if anyone is having questions, we can take a Yeah. few for another 5 minutes. Yeah. Meanwhile, I'll browse other previous questions. Yeah. I think this you had covered. The Sanskrit has only Bhavan, Bhavati for both tum and aap, or there is Yeah. a difference. Yeah, we are going to see that tomorrow. There is a little bit Okay. of difference in it, so we are going to see it tomorrow. Hello, ma'am. Yes. Ma'am, when we use Somvasara and Somvasare, can I use instead of Somvasara, Somvasare, Adya Somvasare? नहीं, अद्य सोमवासरः वो ठीक है, लेकिन सोमवासर तो कुछ है. सोमवासरे विद्यालयः अस्ति. सोमवार को शाला है, स्कूल है. अगर मुझे ऐसा कहना है तो मैं सोमवासरे का उपयोग करूंगी. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Yeah. Yes.
Yes, if there is any doubt regarding Saptami Vibhakti or any Vibhakti which we are doing, please post the questions or please ask it. That's absolutely fine because ये जो विभक्तियां हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है सेंटेंस मेकिंग के लिए. And within all these days till the course ends, we are going to see all the vibhaktis. So अगर एक विभक्ति क्लियर नहीं है तो please ask it then and there ताकि दूसरी विभक्ति समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो या तो फिर there is no confusion. Yeah, I'm not sharing the screen. Yes, जी, साक्षी जी. सोमवार को पाठशाला है. सोमवार से पाठशालायाम अस्ति. नहीं, सोमवासरे सोमवार को है ना. सोमवासरे पाठशाला अस्ति. ठीक है. या फिर पाठशालायाम कुछ, अगर पाठशाला में कुछ है तो बात अलग है, तब वहां पे पाठशाला की सप्तमी विभक्ति होगी. Yeah. Tanmay ji is asking, is Vedic Sanskrit different? Yes, Tanmay ji, it was discussed in the first class. Ma'am, you can comment. Yeah. Yes, Tanmay ji, Vedic Sanskrit is different from the one we are learning now. Different in the sense the language used or the verbs used or the grammar is a bit different from what we are doing it. This one is a easy form of learning Sanskrit or the Sanskrit language which we call as classical Sanskrit now. पहले की जो भाषा है वो वैदिक भाषा है. Aham gacchami and gacchami aham. Both. Is it same? Is it same? Yes, it is. No, the meaning is same. What I will suggest here is कि जब हम अहम गच्छामि कहते हैं तो it becomes a sentence, छोटा सा sentence हो जाता है with 2 words. और गच्छामि अहम जब हम कहते हैं वो हम थोड़ा सा जो काव्यात्मक पद्धति से जब हम कुछ बोलते हैं संस्कृत में तब हम उसका उपयोग करते हैं. मीनिंग दोनों का सेम ही है. ओके. संस्कृत में स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है. वॉट एवर यू से इन विच एवर फॉर्म इज, मीनिंग नहीं बदलता क्योंकि हर एक वर्ड को उसकी अपनी कोई विभक्ति होती है. सो दैट विभक्ति enables us to understand that particular meaning. इसीलिए हम यहाँ पे और बाकी सारी विभक्तियां देख रहे हैं. तत्र कुपी अस्ति and कुपी अस्ति तत्र. It's same. Okay. How to ask? I will read after 2 p.m. This is something about bhavishya kal, that is future tense, and we'll be seeing it in the coming days. That is why I did not interfere in that. मतलब जो हम श्वः कल है और जो कल था इसके लिए मैंने इसीलिए verb यूज नहीं किया है because past tense और future tense हमें अभी देखना बाकी है. हमने अभी सिर्फ present tense देखा है. Okay. Yeah. So yes. I think we are done with the questions. Yes. Okay. Someone is commenting. Please all try to read Sanskrit newspaper Sudharma. I think it will be a little bit easier once we are done with this course. Yeah. But to completely read a newspaper, I think we will need more of the advanced knowledge. Yeah. But anyhow, we can try anytime. So yeah. I think that's it with the questions. Yeah. Thank you all participants. Once again, I am requesting whenever you are logging in, please stay in this session for full time from 11:30 to 12:30, because in the meanwhile we are taking attendance as well, and your certificates will be given on the basis of the number of sessions you have participated. Secondly, please make sure that you are revising things like from previous classes as well. You are not missing anything, and if you are revising things since class 1 till the very previous class, then it will be very much beneficial for you to begin with the new class. Then you will be able to understand it because all the classes are linked together, as you can see now. And last part is, I again request you all, if you have not followed us on Facebook, Instagram and Twitter, please do follow us. It will be helping you and as well as us to stay connected. It will help you in getting the information about the next events, whatever we'll be planning. And
At the end, I thank all the participants for your patience and your questions and your interaction. This has really made us feel very enthusiastic that we shall organize these things more often. And last but not least, Sanita ji, for taking so much pain uh, to prepare these lectures and doing so much technical stuff since morning. She was worried because of she has some problem in laptop, but still she didn't give up and she was planning her classes as well. So, and with two other classes and as well as her school class which she is taking care of, so a lot of hard work she is putting with us. So we must be very thankful. और उस हार्ड वर्क का सबसे बढ़िया जो हम उनको एक गुरु दक्षिणा के रूप में दे सकते हैं वो यही है कि हम निरंतर जो भी पुराना पढ़ाया गया है उसको उसका अभ्यास करते रहें, उसका रिवीजन करते रहें, उसको बार बार पढ़ते रहें, ये हमें कोशिश करनी है. And with this I request all of you to kindly leave the meeting now. It is done for today. Okay. Thank you all, and for now, for today, we leave the we stop the session. Thank you all. You can now leave the meeting. Thanks again. Arpanji, today you face some network issues to reconnect many times. Yeah, sure, that's okay. If you have connected for once also, like if you were there for a while, your attendance is recorded.